Hello students and welcome to this new lecture. In the last lecture we have given the homework of exercise number 7J. So we will solve exercise number 7J today. हम आज exercise number 7J के answers मैं आपको just बता देने वाला हूँ. You have to check the answers if they are right or not, and if there is a mistake you can correct it. Okay. So let me give you the answers of exercise number 7J. The first one, I said, when does he sing a song in his empty apartment? So the answer will be I said का हो जाएगा asked, right? There is a question mark. So I asked when he sang a song in his empty apartment. ये हमने last time पढ़ा था. I asked when he sang a song in his empty apartment. Number two, she asked where they spent their high days and holidays. Number three, you asked why she felt so ashamed after supporting the devil of terror. Number four, they asked when he had killed the goose laying golden eggs. He had killed. That is number four. Number five, he asked where he had to collect his money from. Where he had to collect his money from. Number six, the president asked the members why they wanted the election. Why they wanted the election. Number seven, my brother asked, 1 minute. Okay, chale, let us see. Number seven, my brother asked how she knew the high and mighty personalities. How she knew high and mighty personalities. Number eight, Sanjay asked when they had voted against that corrupt minister. When they had voted against that corrupt minister. Number nine, Yukta asked where all the people waited for her with open arms. Where all the people waited for her with open arms. Number 10, your friend asked which news he thought could hit the headlines. He thought या she thought, आप कुछ भी कर सकते हैं. Your friend asked which news he thought could hit the headlines. Number 11, Ashok asked Rishi why she had not passed the exam. Had not passed. Number 12, David asked who did his work irresponsibly. Okay, chale. Now the type of sentences that we are studying today are command and order and request, suggestion. ये वाले sentences हम पढ़ेंगे कि भाई command order है, request है, suggestion है, तो how to convert that sentence into the indirect speech. First sentence, see the first sentence, bring me a glass of water. Now, while you are noticing the sentence, we'll see that there is a verb first form in the beginning of the sentence, right? There is a first form in the beginning of the sentence, bring, right? There is a verb first form. In the same way, sing a song for us. So there is a word first form in the beginning of the sentence. Do your duty properly. Verb first form in the beginning of the sentence. Write a letter to your parents. There is also word first form in the beginning of the sentence. What I am trying to tell you is this is an order. Okay, this is an order. Command or order. Both are the same thing. So this is an order. If we notice that the sentence starts with the verb and while you are reading the sentence, जब आप sentence पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो ऑर्डर किया है. जैसे bring me a glass of water, sing a song for us, do your duty properly, write a letter to your friends. तो ये एक ऑर्डर किया गया है, राइट, किसी को. ओके. Okay, what we will do here is first of all we will convert said to ordered. जहां पे said to लगेगा वहां पे हम ordered लगा देंगे. ओके, और देखें यहां पे जैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो सेंटेंस है वो आप देखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है. उसके आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे आप TO2 लगा देंगे, नथिंग एल्स. ओके, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास. शी सेड टू हेनरी
sing a song for him. She said to Henry, sing a song for him. फर्स्ट पॉइंट said to का आपको ऑर्डर कर देना है और वर्ब के आगे आपको to लगा देना है जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हटने पे लगता है। इसका मतलब कि आपको दैट लगाना नहीं है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास का टू लग जाएगा। ओके देखिए शी सेड टू हेनरी, सेड टू का हमने कर दिया ऑर्डर्ड। ओके और शी ऑर्डर्ड हेनरी, अब टू लगा दिया, टू सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम। नाउ नोटिस दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे चेंज नहीं होता है, एक्चुअली चेंज होता है। मैं टेक्निकली बोलने जाऊं तो ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म था वो वर्ब था, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसके आगे आप TO2 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, TO2 लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो बन गया इंफिनिटिव। इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया वो। अब ये सर नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब सेंटेंस के मुताबिक, टेंस के मुताबिक, सब सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक, क्वांटिटी क्वालिटी के मुताबिक चेंज होता है ये वर्ब। ओके लेकिन जैसे उसके आगे आप TO2 लगा देते हैं तो वो वर्ब चेंज नहीं होता है, कोई भी टेंस हो कुछ भी हो, ठीक है, वो वर्ब चेंज नहीं होगा सेंटेंस के अंदर। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है और उसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव। तो दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक वर्ब जो चेंज होते हैं टेंस के मुताबिक, ओके, और एक वर्ब जो चेंज नहीं होते हैं टेंसेस के मुताबिक। ऐसे कई वर्ब हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में देखे हैं जो हमने चेंज नहीं किए हैं, वो सारे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके तो ये आंसर आपको पता चला बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, सेड टू का कर दिया हमने ऑर्डर्ड, तो शी ऑर्डर्ड हेनरी। अब ये जो डबल इंटू कॉमर्स के अंदर सेंटेंस है वहां पे ऑर्डर किया गया है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुरू में होगा, ठीक है पक्का। उसके आगे आपको TO2 लगा देना है जिससे वो वर्ब बन जाएगा इंफिनिटिव, ठीक है, और चेंज नहीं होगा। She ordered Henry to sing a song for him. She said to Henry, sing a song for him. She ordered Henry to sing a song for him. ओके अब रिक्वेस्ट कैसे देखेंगे हम, तो अगर सेंटेंस में प्लीज आ जाता है, PLEASE प्लीज, तो उसका हम सेड टू की जगह पे कर देंगे रिक्वेस्टेड टू। जैसे ये एग्जांपल देखे, यू सेड प्लीज हेल्प हिम इमीडिएटली, तो ये प्लीज जो है उस प्लीज जो है वो हम निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे आगे सेड की जगह पे, ठीक है। जैसे ये हम लगाएंगे, देखिए यू रिक्वेस्टेड टू, सेड की जगह हमने कर दिया रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को निकाल देना है, सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड टू लग देना है। यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इमीडिएटली, ओके, यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इमीडिएटली। एक बार और, ये हेल्प चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो अब कन्वर्ट हो गया है इन्फिनिटिव में, नॉन फाइनाइट वर्ब में, वो टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता है। ये समझ में आया बेटा। सेंटेंस में जैसे ही आपको प्लीज दिखे तो आप क्या करेंगे, सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड टू रख देंगे, प्लीज को तो वैसे ही निकाल देने हम, यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इमीडिएटली। ओके चलिए एक्सरसाइज 7K देखते हैं। ओके एक्सरसाइज 7K देखते हैं। नंबर 1, आई सेड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पुअर कंडीशन। चलिए कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। आई सेड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पुअर कंडीशन। आपके स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आया होगा और उसमें हम सेंटेंस देखने वाले हैं। आई सेड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पुअर कंडीशन। ओके अब यहाँ पे देखिए प्लीज आ गया तो क्या कर देंगे हम बेटा, प्लीज विल बी कन्वर्टेड टू रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड टू, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पुअर कंडीशन, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस। कुछ नहीं किया बेटा यहाँ पे हमने, सबसे पहले सेड का हम कर देंगे, ये प्लीज जो है वो तो हम निकाल ही देंगे, और सेड का हम कर देंगे रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, ये रिक्वेस्टेड टू हम कर देंगे। बाकी पीछे का सेंटेंस तो पूरा सेम टू सेम ही है, आप देख सकते हैं, राइट, और कुछ चेंज नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये इसके अंदर नाम किसी का आ गया या लिसनर का नाम गया कि आई सेड टू हिम है, आई सेड टू हर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हर, ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड के बाद में हम लिसनर का नाम डाल देंगे। समझ में आया बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पे आते हैं वापस। नंबर 2,
यू सेड गेट आउट फ्रॉम माई रूम, गेट आउट फ्रॉम माई रूम। देखो शुरू हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ओके। यू ऑर्डर्ड, सेड का कर देंगे हम ऑर्डर्ड, यू ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम योर रूम। माई जो है वो तो चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, फर्स्ट फॉर्म है ना, चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर कौन है यू, तो योर रूम हो जाएगा। नंबर 3, दे सेड कंटिन्यू योर वर्क, दे ऑर्डर्ड टू कंटिन्यू हिज वर्क या हर वर्क, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। नंबर 4, ही सेड प्लीज हेल्प मी, मी फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। चलिए, ही ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्टेड, प्लीज है ना, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। डबल इंडेड कॉमास निकाल देना है, कॉमा निकाल देना है, खाली फुल स्टॉप रखना है सारे सेंटेंसेस में। नंबर 5, माई ब्रदर सेड डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, माई ब्रदर ordered to do his duty properly, her duty properly, कुछ भी हो सकता है। my duty भी आप लिख सकते हैं, my brother said to do my duty properly या my brother ordered to do my duty properly, my brother ordered to do his duty properly, my brother ordered to do her duty properly. Number 6, she said प्लीज राइट अ लेटर टू माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो प्लीज है वो हम कन्वर्ट कर देंगे रिक्वेस्टेड टू में, सेड की जगह पे शी रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर टू हर पेरेंट्स, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, हर पेरेंट्स, ओके। चलिए नंबर 7 देखते हैं हम। यू सेड वर्क हार्ड, यू सेड वर्क हार्ड, you ordered to work hard, you ordered to work hard. Number 8, I said tell him to meet me, i ordered I ordered to tell him to meet me। आप बोलेंगे सर मी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आई सेड है, फर्स्ट पर्सन ही बोल रहा है, तो मी का तो मी ही रखेंगे हम, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो आई ordered to tell him to meet me. Number 9, the teacher said write neatly and correctly, the teacher ordered to write neatly and correctly. Or number 10, Rick said please give me your books, Rick requested to give him her books, okay, please give him her books। बेटा लेट वाले सेंटेंसेस हम करने वाले, लेकिन वो हम यहाँ से नहीं करने वाले। लेट वाला एक ही सेंटेंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कई सारे एग्जांपल्स और हम व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाली एग्जांपल्स ही दिए हैं, सीधा अलग चेंज हो रहा है। तो देखिए ये एक एग्जांपल, आई सेड लेट अस डू सम वर्क, तो आई सजेस्टेड दैट वी शुड डू सम वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेट है, ठीक है, यहाँ पे जो लेट है वो हमको सजेस्ट कर रहा है, तो हम लेट की जगह पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो सेड का हम कर देंगे सजेस्टेड दैट, ठीक है, लेट का कर देंगे हम सजेस्टेड दैट, लेट को निकाल देंगे और वर मतलब सब्जेक्ट है उसके पीछे हम शुड लगा देंगे, ठीक है, उसके पीछे हम शुड लगा देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और एक सेंटेंस हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखें। He said, comma, double inverted commas, let us go for a walk, ठीक है, he said let us go for a walk। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो let को निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम suggested रख देंगे। he suggested that we, या तो आप they भी यूज कर सकते हैं, जैसे थर्ड पर्सन बोल रहे हैं तो they यूज कर सकते हैं, that they should go for a walk, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा अगर he said to her let us go for a walk, तो यहाँ पे he suggested her that they should go for a walk, ठीक है। क्या किया हमने देख लेते हैं, चलिए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले यहाँ पे हमने let देखा, सेंटेंस में सबसे पहले let देखा,
तो आपने क्या करना है, लेट को तो वैसे ही निकाल देना है और उसकी जगह पे सेड टू का सजेस्टेड कर देना है। ठीक है, सेड टू का सजेस्टेड कर देना है। कॉमा और डबल इंटू कॉमा जगह पे आप दैट लगाते थे, वो दैट तो लगाना ही है, इसको आप रिमूव कर देंगे कॉमा डबल इंटू कॉमास को। ठीक है, और दैट लगा देंगे, अस का हो जाएगा दे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है ना, ही सेड टू हर, ये थर्ड पर्सन है तो अस का तो दे हो जाएगा, राइट, ये हमने पहले भी देखा था दैट दे। अब लेट निकाला है तो ये एक वर्ड आपको ऐड करना है शुड, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दे सेड टू हिम, they said to him, let us continue our work, full stop, double ended commas. They said let us continue, they said to him let us continue our work, तो क्या आएगा, they suggested him that they should continue their work। ठीक है, they should continue their work, full stop। क्या किया हमने, देख लेते हैं। दे लेट देखा सबसे पहले तो हमने सेंटेंस के अंदर लेट देखा, तो हमको मालूम है कि दो चीजें करनी है। सबसे पहला क्या करना है, सेड टू का कर देना है सजेस्टेड, ओके, और शुड लगा देना है बस, और लेट को निकाल देना है। अस का हो जाएगा दे, कंटिन्यू अवर का हो जाएगा देयर। समझ में आया बेटा? ये दे सेड टू हिम लेट अस कंटिन्यू अवर वर्क, दे सजेस्टेड हिम दैट दे शुड कंटिन्यू देयर वर्क। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं इसको। और एक नए टाइप के सेंटेंस देखते हैं जो है एक्सक्लेमेटरी एंड विशेष। एक्सक्लेमेटरी और विशेष वाले सेंटेंस देखते हैं। ये थोड़ा सा आप फोकस से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस जो है वो थोड़े ट्रिकी हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में से पहले असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और फिर उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये एक ट्राई करते हैं हम सेंटेंस। हरी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो हम आ गए व्हाइट बोर्ड पे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, हरी सेड, इसको भी छोटा करना पड़ेगा भाई। हरी सेड व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल एंडेड कॉमास। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको आप असर्टिव सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट में आपको क्लियरली बता दूं, पीछे से नाउन उठाइए और हेल्पिंग वर्ब उठाइए और सेंटेंस के आगे रख दीजिए। ठीक है, जैसे शी इज अ BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया आपका एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर व्हाट का क्या करना है, तो आप जब एक्सक्लेमेटरी में से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो व्हाट का आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट का आप वेरी कर सकते हैं, व्हाट आएगा, हाउ आएगा, तो उसको आप वेरी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, पहले हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। मैं आपके लिए ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं कि भाई एक्सक्लेमेटरी है ये सेंटेंस, डबल इनवर्टेड कॉमास के बीच में। अब ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, मतलब एक स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। हरी, अब आपको क्या करना है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो यहाँ पे आप लगाएंगे एक्सक्लेम्ड। ठीक है, आप लगाएंगे एक्सक्लेम्ड क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था हमारा, तो एक्सक्लेम्ड हमने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी को फॉलो करने के लिए। हरी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या किया हमने, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख रहा है आपको वो यहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो ये जो है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये तो आपको पता ही है।
फिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। ये ट्रिक क्या है पता है? ये आप ये फॉलो करेंगे। ये जो मार्क हैं, पहले तो यहां से सब्जेक्ट पकड़ेंगे। ये है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पकड़ा और हेल्पिंग वर्ब पकड़ा। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पकड़ने के बाद उसको आप आगे लेके आएंगे और फिर जो पूरा सेंटेंस है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट वन। पहले ये करना है नंबर 1 और फिर नंबर 2। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे और उसको लेके आएंगे आगे। ठीक है, उसको लेके आएंगे आगे। और फिर ये जो उसका सेंटेंस का पीछे का पार्ट है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, और पीछे रख देंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, शी इज जो है उसको आप आगे लेके आएंगे और जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट था, अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब व्हाट का क्या करेंगे, व्हाट और हाउ एक्सक्लेमेटरी में आपको दिखता ही है शुरुआत में, तो उसको तो वैसे ही हम निकाल देंगे। ठीक है, उसको तो वैसे ही हम निकाल देंगे, उसकी जगह पे हम वेरी रख देंगे। ठीक है, उसकी जगह पे हम वेरी रख देंगे। तो ये आपको पता चल गया बेटा, हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। ओके, यहां तक आपको पता चल गया। आगे देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस आपके पास आ गया, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था वो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड। ठीक है, हरी एक्सक्लेम्ड दैट शी, तो शी रहेगा, इसका हम कर देंगे वॉज। ठीक है, इसका हम कर देंगे वॉज, बस, बाकी कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। ये समझ में आया बेटा? एक और सेंटेंस ट्राई करें, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, यू सेड व्हाट अ हाई माउंटेन इट इज। तो चलिए वो सेंटेंस देखते हैं। यू सेड व्हाट अ हाई माउंटेन इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल इनवर्टेड कॉमास। मैं आपके लिए लिख देता हूं ब्रैकेट में कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम सिंपल सेंटेंस में। यू सेड कॉमा डबल एंड कॉमास व्हाट अ हाई माउंटेन इट इज, पीछे से सब्जेक्ट उठाइए, इट उठा दिया हमने, इज उठा दिया पीछे से। ठीक है, अब आगे का क्या है, अ हाई माउंटेन, इट इज अ हाई माउंटेन। अब व्हाट निकालना है तो इट इज अ वेरी हाई माउंटेन कर दीजिए, इट इज अ वेरी हाई माउंटेन, फुल स्टॉप, डबल एंड कॉमास। ये एक हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यू एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी हाई माउंटेन, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या किया यहाँ पे हमने और कैसे किया। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क था वो हमने देखा, वो मार्क देख के हमने एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने का प्रयास कैसे किया। पहले इट इज लिया आगे और अ हाई माउंटेन उसके पीछे रखा, व्हाट का हमने वेरी रखा। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस कन्वर्ट हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव सेंटेंस में। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड लिखेंगे हम। यू एक्सक्लेम्ड दैट, डबल एंडेड कॉमा, कॉमा की जगह पे दैट रख देंगे हम। इट का इट रहेगा, इसका हम कर देंगे वॉज, बस बात खत्म हो गई। समझ में आया? तो मतलब जो टेंस है वो आपको चेंज कर देना है किसी सिंपल सेंटेंस में। ओके, और यू है, आई है, तो वो अकॉर्डिंगली स्पीकर, अकॉर्डिंगली लिसनर आपको चेंज कर देना है। चलिए अब वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। और एक बात बेटा, ये देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर अलास ऐसा वर्ड आ गया तो आप एक्सक्लेम्ड आगे लिख रहे हैं ना, उसके पीछे आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ऐसा कर देंगे। ठीक है, हुर्रा आ गया सेंटेंस के अंदर तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जैसे द टॉल मैन सेड अलास आई कैन नॉट टॉक, तो द टॉल मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही, आई का ही हो जाएगा राइट, कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड नॉट टॉक। हुर्रा आ गया, हुर्रा, द राइटर एक्सक्लेम्ड विद जॉय that he had got the Nobel Prize, have का हो जाएगा had, he had got the Nobel Prize। ओके, एक बात मैं बताता हूं, अगर कोई प्रे करता है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, या आपकी विश पूरी हो या ऐसा कुछ ब्लेसिंग करता है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रेड दैट।
ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, प्रेड दैट। ये एड्रेसिंग तो नहीं करना है हमको। द कमांडर प्रेड फॉर द सोल्जर्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, द कमांडर प्रेड फॉर द सोल्जर्स दैट गॉड माइट ब्लेस देम। ठीक है, एक्सरसाइज 7L आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरी एक्सरसाइज आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख सकूं। ठीक है, ये हो गई आपके स्क्रीन, अच्छा बहुत बढ़िया है ये तो। नंबर 9 तो 2 टुकड़े में करते हैं, नंबर 10 तक आप पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक्सरसाइज नंबर 7L का। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और नंबर 11 से नंबर 19 का खींच लीजिए अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7L आप ट्राई करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है वो ऐसा नहीं है कि खाली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या लेट वाले सेंटेंस है, ये सब मिक्स है, ये सब मिक्स है। और इसमें से ट्रिकी ट्रिकी सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, देखो कौन कौन से हैं। नंबर 7 है एक, तो जहाँ पे 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की बात आती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आप खुद ट्राई करिए फिर हम सीखेंगे। फिर नंबर 9 है जहाँ पे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है और फिर सिंपल सेंटेंस आया है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो सब इजी है, मस्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे हैड टू में। नंबर 17 में मस्ट को आप कर देंगे हैड टू में। यहाँ पे देखो शुरू होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म से, तो शी कर्स्ड हिम ऐसा भी आप लिख सकते हैं, शी कर्स्ड हिम एंड सेड ऐसा आप कर सकते हैं। नंबर 18 जो है वो आपको हार्ड पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। आपके आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर 7L। चलिए बाय बाय, मिलेंगे। आज हम एक्सरसाइज की वो एक बार बुक के अंदर लिख दीजिएगा और ये 7L ट्राई कीजिएगा। ठीक, चल बाय बाय।